Hello everyone, I'm your science teacher. In the last video, we had seen the chemical reactions and equations and balancing the chemical equations. Students, today in this video, we will see types of chemical reactions. So students, there are many types of chemical reactions. Now let's see first type, combination reactions. So what is combination reactions? Let's start. Those reactions in which two or more substances combine to form a single substance are called combination reactions. Students, here you can see an example. Carbon. In this reaction, carbon react with oxygen and form a single product, कार्बन डाइऑक्साइड. स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है. मीन्स एट द लेफ्ट साइड वी हैव टू रिएक्टेंट्स, है ना, एंड एट द राइट साइड here we have only one product. So it is a type of combination reaction. Means here carbon react with oxygen and form a single substance, single product, CO2. So it is a combination reactions जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं CO2, है ना. तो सच अ रिएक्शन इन विच a single product is formed from two or more reactants is known as a combination reaction. इसका दूसरा टाइप भी आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, जिसमें हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट H2O वाटर. इट इज़ ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. सेकेंड टाइप देख सकते हैं यहाँ पर, मैग्नीशियम react with oxygen and form a single product, magnesium oxide. So these all are example of combination reaction. So students, what is a combination reaction? In the simple language we can say that when two or more substance means element or compound combine to form a single product, the reactions are called the combination reactions. Next type, decomposition reaction. So students, what is decomposition reactions? Those reactions in which a compound is split up into two or more simple substance are called as decomposition reactions, है ना. So here we can say एग्जाम्पल देखते हैं हम. मीन्स ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक प्रोडक्ट जो है एक रिएक्टेंट जो है वो डिकम्पोज हो जाता है किसमें, स्मॉलर सब्सटेंस में, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में. तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इन द सिंपल वे, अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन to give us simpler products called a decomposition reaction. Here you can see an example of decomposition reaction, very simple example. Here limestone formula is CaCO3, solid है ना, एक ही reactant है, single reactant है. When we heat this calcium carbonate, it gives calcium oxide means quicklime plus carbon dioxide. Means we can say the decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries. Students, calcium oxide is called lime or quicklime, याद रखना है आपको. It has many uses. One is in the manufacture of cement. Here students, so it is a type of decomposition reaction. क्या हो रहा है decomposition reaction में, एक सिंगल जो रिएक्टेंट है वो स्प्लिट हो रहा है सिंपलर सब्सटेंस में, टू और मोर देन.
सो इट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर देखते हैं, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं ये फर्दर कई टाइप्स की हो सकती है ना। जैसे सबसे पहला टाइप आपको बताया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो आपको समझ में आया कि क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब एक रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन होना इनटू उसके सिंपलर सब्सटेंस में, तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेकिन अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट टाइप आप देख रहे हो थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन बोल रहे हैं मीन्स जिसमें कैरिड आउट हो रही है किसके, बाय हीटिंग के द्वारा। मतलब अब जब हम हीट दे करके किसी कंपाउंड को डिकम्पोज करेंगे, है ना, तो वो कौन सा हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। फॉर एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को जब हम हीट प्रोवाइड कराते हैं ना, हीट देते हैं, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, सिंपलर सब्सटेंस में, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में। जैसे बनाता है यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें फेरस सल्फेट जो है वो हीट को क्या कर रहा है, यहाँ पर एब्जॉर्ब करता है और स्प्लिट हो जाता है 3 पार्ट्स में। सो इट इज़ अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट टाइप इसका, व्हेन द डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय द इलेक्ट्रिसिटी इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, या इलेक्ट्रिकल बोलेंगे यहाँ पर डिकम्पोजिशन, है ना। मीन्स देखते हैं यहाँ पर H2O है। H2O वाटर है, जिसमें वाटर में आपको पता है 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बेटा कोई भी ऐसा फिजिकल मेथड नहीं है जिसमें हम वाटर से ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को निकाल सकें। कोई भी ऐसा मेथड, फिजिकल मेथड नहीं है। तो हम वाटर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सेपरेट कर सकते हैं ओनली बाय द इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो बाय इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन वी कैन सेपरेट द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं बेटा, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय लाइट इट इज़ कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ये थर्ड टाइप है बेटा। पहला टाइप हमने देख चुके हैं, है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड टाइप हमने देखा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, है ना, और थर्ड हम देख रहे हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अब फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कैसा हो रहा है, कैरिड आउट बाय द लाइट मीन्स व्हेन वी ओपन द सिल्वर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना, मतलब आप देखते हो यू विल सी दैट द वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन द सनलाइट। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू द सिल्वर एंड द क्लोरीन बाय द लाइट, है ना। जब हम लाइट में प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर ब्रोमाइड को, है ना, प्रकाश में ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, तो आफ्टर सम टाइम इट एब्जॉर्ब द लाइट and break down into the silver and bromine and silver and chlorine. तो it is a type of photochemical decomposition। मतलब ये कहाँ से एनर्जी ले रहा है, कहाँ से हीट ले रहा है, वो फोटोकेमिकल मतलब लाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग दिया हुआ है लाइन, द डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मीन्स जो हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और वी कैन से एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो हमारा फूड का डाइजेशन है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी बोलते हैं हम लोग। क्यों बोलते हैं, सिंपल वे में मैं अब आपको बताऊं कि वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, है ना। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट वी ईट एवरी डे। ड्यूरिंग द डाइजेशन द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर सब्सटेंस। जैसे कि हम लोग राइस खाते हैं, राइस पोटैटो, है ना, खाते हैं, इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है,
और ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो ब्रेक डाउन होता है और किस में, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम इनहेल करते हैं, है ना, ब्रीथिंग करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ऑक्सीजन जो है वो अपने इसके ग्लूकोज के साथ कंबाइन होती है। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो हमारे फूड का डिकम्पोजिशन हो जाता है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, वाटर एज अ यूरिन निकलता है और बहुत सारी एनर्जी हमको मिलती है जिससे हम वर्क कर पाते हैं। तो डाइजेशन ऑफ फूड जो है बेटा आपको याद रखना है, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मीन्स जिसमें एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ होती है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा आपकी बुक में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दी हुई है पेज नंबर 10 पर। तो आप बुक लेकर बैठेंगे, पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Those reactions in which one element takes the position of other element in a compound means ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक एलिमेंट जो होता है वो दूसरे एलिमेंट की प्लेस को एक्सेप्ट कर लेता है या ले लेता है, छीन लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल बताऊं कि कोई एक हेल्दी बच्चा है और क्लास में, और एक बहुत वीक बच्चा है ना, और वो दोनों एक ही जगह के लिए लड़ रहे हैं कि मैं यहाँ बैठूंगी, वो बोल रहा है नहीं मैं भी यहाँ बैठूंगा, और वो भी दूसरा बच्चा भी बोल रहे हैं ना कि सेम प्लेस में बैठना है, तो जीतेगा कौन? तो भाई आप सिंपल बता सकते हो ना कौन जीतेगा? जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा वही जीत पाएगा, वही बैठ पाएगा उस प्लेस पर, क्योंकि जो कमज़ोर होगा वो तो नहीं लड़ सकता है, वो बैठ नहीं पाएगा, है ना। तो ये इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। इन द मतलब अदर वर्ड्स में हम देख सकते हैं कि अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, इट इज़ कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। तो दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम ये सोचते हैं कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, किस तरह से याद रखेंगे कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सीरीज़ दी हुई है, आप इस सीरीज़ को नोट कर लेंगे, है ना। इस सीरीज़ में आप देख रहे हो यहाँ पर सबसे जो आगे मेटल है कौन है, पोटेशियम के, है ना। फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, है ना। इस तरह से जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। इस सीरीज़ में सबसे रिएक्टिव मेटल जो है वो क्या है, पोटेशियम है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। और सबसे लीस्ट रिएक्टिव, कम रिएक्टिव जो मेटल है वो कौन है, प्लैटिनम। तो आपको याद रखना है रिएक्टिविटी सीरीज़, तभी आप रिएक्शन कर पाओगे, आप बता पाओगे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है ना। तो देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको हम जिंक के साथ ऐड कर रहे हैं, मतलब इनके बीच में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, जिंक में हम HCl को ऐड कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या फॉर्म हो रहा है, जिंक क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ हो रही है। बेटा ये हाइड्रोजन गैस जो रिलीज़ हुई है, यहाँ पर देखते हैं इसकी पोजीशन क्या थी। ये HCl के साथ था पहले, है ना, और यहाँ पर कौन था दूसरा रिएक्टेंट, अपना जिंक था। जब हमने HCl की रिएक्शन जिंक के साथ करवाई तो हमने देखा कि जो जिंक एलिमेंट है उसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों कर दिया, अब हम इस सीरीज़ में देख सकते हैं। इस सीरीज़ में हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जिंक है ना, वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में आ रहे हैं, जबकि हाइड्रोजन जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे है, मतलब जिंक के बाद आ रहा है। तो इसलिए जो हाइड्रोजन है वो लीस्ट रिएक्टिव है, जबकि जो जिंक है वो कैसा है, मोस्ट रिएक्टिव है कंपेयर टू द हाइड्रोजन। तो इसलिए जिंक जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, इसलिए फॉर्म कर सकता है ZnCl2+H2। तो बच्चों आपको याद रखना है, इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को कॉपी में लिखना है और इस सीरीज़ को याद रखना है। देखो यहाँ पर सोडियम भी है, आपने सुना होगा सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं। पता है क्यों रखते हैं, क्योंकि ये भी मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। अगर हम इसको ओपन ऐसी एयर में छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, बर्न जल जाएगा, है ना, रिएक्ट कर लेगा।
किससे, एयर से, मॉइस्ट से, और जल जाएगा। तो ये सारी जो ऊपर की मेटल्स हैं ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। इस तरह से ये डिक्रीजिंग सीरीज़ है जिसमें लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वो कौन है, प्लैटिनम है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम इस एग्जांपल को देखते हैं जिसमें कॉपर है और सिल्वर है ना। अब देखते हैं द हाइड्रोजन एटम आर डिस्प्लेस बाय Zn एटम्स, सॉरी, सिल्वर इज़ डिस्प्लेस बाय कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर जो कॉपर है बेटा, कॉपर जो है वो मोस्ट रिएक्टिव में आएगा, जबकि सिल्वर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव में आएगा। इसलिए कॉपर जो है वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है ना। और क्या फॉर्म कर सकता है, कॉपर नाइट्रेट। ये कैसे पता चलेगा आपको, आपको ये सीरीज़ याद करनी पड़ेगी, है ना, कि यहाँ पर पहले कॉपर आ रहा है, बाद में सिल्वर आ रहा है। तो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू द सिल्वर, है ना। आपको सीरीज़ देख कर के ही आप ये रिएक्शन कर पाओगे। आपको याद रखना है कौन सा मेटल ऊपर आता है और कौन सा मेटल नीचे आता है इस सीरीज़ में, है ना। नेक्स्ट देखते हैं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी हमने पढ़ा था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या थी, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो था वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था। अभी हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो लेट्स सी दोज रिएक्शंस इन विच टू compounds react by an exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reactions, है ना। सो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल में है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर अपने पास टू सॉल्ट्स हैं। एक सॉल्ट सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, दूसरा सॉल्ट है NaCl, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर आयन का एक्सचेंज होगा। मीन्स ये जो सिल्वर है और यहाँ जो सोडियम है ना, ये क्या होंगे, अपनी अपनी प्लेस को एक्सचेंज कर लेंगे। आप देख रहे हैं सोडियम जो है वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है ना, क्योंकि सोडियम जो है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। तो ये क्या करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, AgCl, है ना, और NaNO3। मतलब यहाँ से जो सोडियम है उसने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया है और क्या बनाया है, AgCl और NaNO3। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयन का एक्सचेंज हो रहा है, अदला बदली हो रही है आयन्स की, है ना। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल भी देखेंगे, HCl और NaOH। बेटा आप सभी को पता है यहाँ पर सोडियम मोस्ट रिएक्टिव है और हाइड्रोजन लीस्ट रिएक्टिव है। तो दोनों क्या करेंगे, आयन एक्सचेंज हो जाएंगे। तो सोडियम जो सोडियम है वो Cl के साथ और हाइड्रोजन जो है वो OH के साथ। तो इस तरह से NaCl फॉर्म हो जाएगा, एक सॉल्ट फॉर्म हो जाता है ना। सॉल्ट फॉर्म हो गया यहाँ पर NaCl। दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पर भी डबल सॉल्ट है, BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड है और कॉपर सल्फेट है ना। अब इन दोनों में भी देख सकते हैं आप यहाँ पर कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है। ये भी आयंस के एक्सचेंज कर लेंगे और बना लेंगे बेरियम सल्फेट और क्यूप्रिक क्लोराइड। एक इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पर दी हुए देखते हैं, दोज रिएक्शंस इन विच एन insoluble solid is formed that separates from the solution are called precipitation reactions। बेटा ऐसी reactions जिसमें insoluble solid का formation होता है उसे हम क्या बोलते हैं, precipitation reaction। मीन्स precipitate बनता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो BA सल्फेट सॉलिड है ना, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया है वाइट कलर का। तो ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।